Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Amjad Taki and our today's lecture is about promotion and performance evaluation. We are studying about personal administration and major aspects of personal administration, including recruitment, training, promotion and performance evaluation, remuneration and retirement in different countries. In our recent lecture, we have studied about recruitment procedures in different countries in comparative approach, training, types of training and training procedure or training institutes in France, USA, UK, USSR and in Pakistan. Today we are going to discuss about promotion and performance evaluation in France, the UK, the USA, USSR and Pakistan in comparative perspective. First, I will try to define promotion. Further, we will study about different methods or procedures of promotion practiced in different countries. Let us start. What is promotion? Here is different definitions of promotions. Firstly, the term promotion means advancement, moving ahead, securing greater recognition and status. The second definition is a promotion is a change of position that involves the assumption of greater responsibilities, a movement up the ladder of authority. Third definition of promotion refers to the status structure of organization and to prestige accorded to various positions. In our ultimate analysis, promotions are changes in rank with some enhanced authority and responsibility. Next, promotion is a tool for motivating civil servants to achieve greater loyalty to the organization. There were different types of promotion. प्रमोशन क्या है, किस तरह मतलब इसको हम मुख्तलिफ इनमें इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि प्रमोशन क्या है, कि उसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी जो प्रेस्टीज है उसको बढ़ा देना, उसके बढ़ जाने से हम कहते हैं कि इसकी प्रमोशन हो गई है. ग्रेटर रिकग्निशन एंड स्टेटस, कि आपका जो स्टेटस है वो रिवाइज हो गया है, वो बढ़ गया है, वो अच्छा हो गया पहले से, इसको भी प्रमोशन बोलेंगे. इसमें नेक्स्ट इसमें है ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आपके जो बेनिफिट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं, इसको भी प्रमोशन बोलेंगे. आपका रैंक जो है, रैंक बढ़ गया, रैंक में जो है तब्दीली आ गई है. पहले आप लोअर रैंक पे थे, अभी आप नेक्स्ट मतलब आप हायर रैंक पे चले गए हैं, ये भी प्रमोशन है. आपकी फिनेंशियली आपको थोड़ा से कोई बेनिफिट मिल गया, फिनेंशियली तौर पर आपकी एक जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, उसमें इनहेंस आ गया है, इंक्रीज़ हो गया है, वो भी आपकी प्रमोशन है. आपकी प्रेस्टीज, लॉयल्टी, कोई भी चीज़ जिसमें आप एडवांसमेंट लेवल पर चले जाते हैं वो आपकी प्रमोशन कहलाती है. अकॉर्डिंग टू डेल डॉडर, a mere increase in pay or adjustment of compensation is not essential to promotion. कि डेल डोर ने क्या कहा है कि सिर्फ आपका किसी पे वगैरह में इजाफा या आपको थोड़ी सी कोई प्रेस्टीज वगैरह एक्स्ट्रा दे दी जाए, सिर्फ इसी का नाम प्रमोशन नहीं है. उसने प्रमोशन को मज़ीद उसने डिफ़ाइन किया है. ड्राइव प्रमोशन, उसने एक नया वर्ड टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, drive promotion. He also describes about drive promotion, wherein there will be an advance in prestige, authority and responsibility without any accompanying increase in compensation. के प्रेस्टीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी
आपकी बढ़ जाए, लेकिन इसके इवज़ आपकी इन कंपनसेशन आपकी जो सैलरी है यानी कि फ़ाइनेंशियली तौर पर आपको बेनिफिट ना हो, तो इस तरह की प्रमोशन को ड्राइव प्रमोशन बोलेंगे। ये इसने टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, ड्राइव प्रमोशन के आपकी प्रेस्टीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, आपका रिकग्निशन जो है वो बढ़ गया है, लेकिन आपकी सैलरी जो है फाइनेंशियली जो आपको बेनिफिट है वो नहीं है, इस तरह का कोई कंपनसेशन नहीं है, तो वो भी प्रमोशन ही होगी, लेकिन उसको डेल डॉडर ने ड्राइव प्रमोशन कहा है। बोथ प्रमोशन एंड ड्राइव प्रमोशंस आर पार्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन मॉडर्न ब्यूरोक्रेसीज के मोशन ड्राइव प्रमोशन दोनों यह है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मॉडर्न पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ही है। नेक्स्ट, sound consideration for promotion based on the following aspects. Number 1, it is the most important motivational factor in governmental organization. It is easy for the government to identify the persons for higher positions. Number 3, a promotion involves a chain of posting in an organization and leaves room for induction of fresh blood from outside on merit recruitment. Number 4, it reduces the turnover of personnel as well as discipline among the staff. Number 4 से स्टार्ट करेंगे। It reduces the turnover of personnel as well as discipline among the staff. जो इनका टर्नओवर है पर्सनल का, जो स्टाफ का, वो क्या करता है, कम का होता है। कम होने से क्या होता है, सीट्स क्रिएट होती हैं। सीट्स क्रिएट होने से जो यंग ब्लड है, यंग जनरेशन है, यंग जो आपके जो अनएम्प्लॉयड जो पर्सनस हैं, उनके लिए एक चांस बढ़ता है, उनके इंडक्शन का जो है चांसेस वो बढ़ जाते हैं। इसमें यही है कि इसका हायर पोजीशन के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हायर पोजीशन के लिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो स्ट्रगल करता है। इसके अलावा जो ये है मोटिवेशनल फैक्टर आ जाता है। मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो पैदा होता है प्रमोशन के लिए। जो एम्प्लॉयज़ हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो प्रमोशन के लिए अच्छा वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रमोशन, जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रमोशन, सीनियरिटी प्रिंसिपल एंड नंबर 2 मेरिट प्रिंसिपल। Seniority principle. What is seniority principle? Seniority principle is the oldest used widely in government services. In this system, the length of service of individual person is taken into account for promotion. It is free from political consideration, favoritism, and can be exactly fixed. सीनियरिटी यानी कि सीनियरिटी बेस पे आपकी सर्विस या एज की सीनियरिटी बेस पे जो आपको प्रमोशन दी जाती है, इसको सीनियरिटी बेस्ड प्रिंसिपल या सीनियरिटी प्रिंसिपल इसको बोलेंगे। इसमें किसी किस्म की फेवरेटिज़म, नेपोटिज़म, पॉलिटिकल कंसिडरेशन ये चीज़ें नहीं होती। इन मेरिट प्रिंसिपल, अ पर्सनस प्रमोशन डिपेंड्स ऑन हिज इंडिविजुअल मेरिट, पर्सनैलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड अदर फैक्टर्स। लेकिन जो मेरिट प्रिंसिपल है, मेरिट बेस्ड प्रिंसिपल है, उसमें क्या चीज़ें काउंट होती हैं कि जो इंडिविजुअल या ऑफिशियल है उसका इंडिविजुअल मेरिट, उसकी पर्सनैलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये चीज़ें मैटर करती हैं। सीनियरिटी में प्रिंसिपल में यही था कि उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वहाँ पर फेवरेटिज़म वगैरह नहीं थी, पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं थी, वो उनकी एज वाइज या सर्विस टेन्योर जो है, सर्विस लेंथ है, उस हिसाब से प्रमोशन मिलती है। लेकिन मेरिट बेस्ड में जो एम्प्लॉई है या प्रोफेशनल है उसके इंडिविजुअल मेरिट या उसकी अपनी जो पर्सनल ट्रेट्स हैं या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनकी वजह से जो प्रमोशन है वो मिलती है। Next, the merit system is open to severe criticism by others both in Britain and India. Seniority is the primary basis of promotion of civil servants. ये सीनियरिटी बेस जो है, इसमें जब देखा जाता है कि ये लीडरशिप बेस पर है, लेकिन मेजर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉई एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, लेकिन उसको किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका
कोई एफिलिएशन नहीं है तो उसकी जो पर्सनल ट्रेट्स हैं उनको इग्नोर करते हुए जो उसका कंपोनेंट होगा या दूसरा जो उससे लो रैंक पर जो या जिस ऑफिसर की लॉयल्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है उसको प्रमोट कर दिया जाता। तो इसकी वजह से इसको अच्छा नहीं काउंट किया जाता, समझा नहीं जाता कि ये जो मेरिट बेस्ड है ये बेहतर नहीं है। ब्रिटिश और इंडिया में यही मेरिट बेस्ड एक तवील मुद्दत तक मेरिट बेस्ड पॉलिसी जो है यही चलती रही है। फर्दर इसने यहाँ पर डिस्कस किया है कि सर्टन रिजर्वेशन ऑफ पोजीशंस के जिस तरह रिक्रूटमेंट के वक्त सर्टन पोजीशंस हैं या मतलब सीट्स हैं जो रिज़र्व सीट जिसकी बात करें रिज़र्वेशन होती है, वहीं ये बात कर रहे हैं कि जैसे प्रमोशन है, प्रमोशन में भी बाज़ कंट्रीज़ में प्रमोशन भी इसी बेस पर होती हैं। प्रमोशन के हवाले से भी जो सीट्स हैं वो रिज़र्व्ड होती हैं, लेकिन उसको हर कंट्री में मतलब तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हम बात करेंगे प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन फ्रांस। रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन कैरियर सिविल सर्विस इज़ वेरी रेयर इन द यूके, फ्रांस एंड यूएसएसआर। कि इन ममालिक में जो रिजर्वेशन है ये एक इंडक्शन के वक्त रिजर्वेशन है या उनकी सीट्स की जो है रिजर्वेशन है, पोजीशंस की रिजर्वेशन है, एक उस वक्त है। दूसरा प्रमोशन के वक्त फिर से सीट्स की रिजर्वेशन है। तो जो यूके, फ्रांस और यूएसएसआर में इस तरह की जो रिजर्वेशन है प्रमोशन के लिए उसको डिस्करेज किया जाता रहा है। इन फ्रांस अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ सीनियरिटी एंड मेरिट प्रिंसिपल इज़ फॉलोड फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए फ्रांस में ये दोनों रोल जो दो हमने टाइप्स इसकी रेट की हैं प्रमोशन की, मेरिट प्रिंसिपल और सीनियरिटी, इन दोनों को फॉलो किया जाता है। देयर इज़ अ लेस स्कोप ऑफ प्रमोशन इन फ्रांस। Promotion is effected only within the same corps and the restricted scope of promotion in France is due to the fact that each category and corps are classified on a threefold basis such as grades, classes and echelons। कि फ्रांस में जो है वो प्रमोशन का जो स्कोप है वो बहुत कम है। इसकी क्या वजह है? जो कॉर्प्स है जिस बेस पर वहाँ पर इंडक्शन होती है, रिक्रूटमेंट होती है, इसी तरह उन कॉर्प्स को मज़ीद क्लासीफाई उसने किया हुआ है थ्री फोल्ड्स में, ग्रेड्स, क्लासेस एंड एक्लॉन्स। इन थ्री फोल्ड्स को ग्रेड्स, क्लासेस एंड एक्लॉन्स बोलते हैं। इन एक्लॉन्स में किस तरह से यानी कि जो ये एम्प्लॉइज़ हैं वो किस तरह प्रमोट होते हैं या किस तरह अगर किसी को कोई इशू है प्रमोशन के हवाले से तो उनका क्या प्रोसीजर है। अ लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय ENA, इकॉल नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने इंस्टीट्यूट रीड आउट किया ऑलरेडी कि उसमें एक एडवाइजरी कमेटी है, वो जो उसमें डिफरेंट ये स्टाफ के मेंबर्स होते हैं और जिस एम्प्लॉय को कोई इशू है उसकी प्रमोशन के हवाले से उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और दूसरा उस कमेटी के जो एक स्टाफ जो है वो जो डिपार्टमेंट से है उसके स्टाफ का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मिलकर एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी इज़ एम्पावर्ड टू अप्रूव द लिस्ट फॉर प्रमोशन एंड कैन आल्सो सॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रमोशनल लिस्ट। कि वही कमेटी जो है उनकी प्रमोशनल लिस्ट में अगर किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है वो उसको रिजॉल्व करके देन वो फाइनल उसकी प्रमोशन के लिए भिजवा दी जाती है। देयर इज़ एन existence of promotion outside the government organization to provide bodies which is legally allowed in France। ये फ्रांस में जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अगर प्रमोशन के लिए ऐसे इदारे, ऐसी बिजनेस एंटिटीज़ जहाँ पर जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, प्राइवेट हैं बट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, तो फ्रांस में जो सिविल सर्वेंट्स हैं वहाँ पर सर्व कर सकते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से सर्व करने के बाद दोबारा जो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट को रीजॉइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जब वो पेरेंट डिपार्टमेंट को रीजॉइन करेंगे तो वहाँ पर जो उनकी पेंशन है पेंशन नहीं बनेगी, बाकी जो इसके बेनिफिट्स हैं या जो भी उसकी राइट्स हैं वो उसको मिलते हैं। Thatcher's 1979 to 89 strongly favored such kind of disguised promotion and exchange of public and private pensions at the managerial level। कि थैचरिसन ने यही जो
सिविल सर्वेंट्स प्राइवेट बॉडीज़ में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं और दोबारा फिर इधर आ जाते हैं। थैचर सन ने इसको स्ट्रांगली फेवर किया है कि इससे पब्लिक और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका जो मार्जिनल लेवल है, मैनेजरियल जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन यूके। At the top of civil service administration in the UK, promotions are made on merit, but at the lower levels, promotion tends to take place in accordance with seniority rules agreed to by the staff union. UK में क्या है, जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट इनके मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी जो प्रमोशन है वो मेरिट बेस्ड है, लेकिन जो लोअर लेवल जो इनका स्टाफ है उसकी जो प्रमोशन है वो सीनियरिटी बेस्ड है। सीनियरिटी बेस्ड किस तरह उसकी वो फाइनल की जाती है कि जो उनकी स्टाफ का जो यूनियन है, जिस तरह यहाँ पर हमारे इदारों में यूनियंस बनी हुई हैं, इस सरकारी इदारों में जो यूनियंस हैं, इसी तरह वहाँ पर जो यूनियंस हैं उन यूनियंस से कंसल्टेशन के बाद जो हायर रैंक वाले ऑफिसर्स हैं उनको जो प्रमोट है वो मेरिट बेस पर किया जाता है, लोअर रैंक वालों को सीनियरिटी बेस पर प्रमोट किया जाता है। इन द यूके, प्रमोशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स आर मेड पार्टली थ्रू सेंट्रली कंडक्टेड competitions and partially by departments. In this regard, promotion to most of the highest position in civil service, for instance, permanent secretaries, deputy secretaries, are approved by the Prime Minister, who is advised in these matters by head of the Home Civil Service. इसमें यूके में जो ग्रेडिंग की गई है, एम्प्लॉइज़ को क्लासीफाई या उनको ग्रेडिंग की गई है, जिसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक एम्प्लॉइज़ आ जाते हैं। ग्रेड 1 में परमानेंट सेक्रेटरी, ग्रेड 1A में सेकंड परमानेंट सेक्रेटरी और ग्रेड 2 में डिप्टी सेक्रेटरी। ये इस लेवल के जो टॉप लेवल के जो इनके एम्प्लॉइज़ हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी जो प्रमोशन है वो पॉलिटिकल एंड मेरिट बेस्ड कंसिडरेशन पर होती है कि एक तो मेरिट देखा जाता है, दूसरा जो वहाँ पर रूलिंग पार्टी है उसकी एफिलिएशन या उसकी देखा जाता है कि वो किस सिविल सर्वेंट को लाइक करते हैं। तो जो टॉप के जो ग्रेड 1 और 2 के जो ऑफिसर्स हैं उनको पॉलिटिकल एंड मेरिट बेस्ड पर प्रमोशन दी जाती है। नेक्स्ट, इसके प्रमोशन के लिए मज़ीद इसमें यह है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इनकी एम्प्लॉइज़ हैं, पॉलिटिकल मेरिट बेस्ड में यही है कि जब उनका जो फाइनल होने के बाद, जब मुतल्लिका डिपार्टमेंट से फाइनल इनकी प्रमोशन होने के बाद उसकी जो अप्रूवल है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके देगा। नेक्स्ट इसमें है ग्रेड 3 एंड 4। इसमें ग्रेड 3 में अंडर सेक्रेटरी आ जाते हैं और ग्रेड 4 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इनकी जो प्रमोशन है वो मेरिट कम सीनियरिटी प्रिंसिपल, कि इनकी जो प्रमोशन होती है वो मेरिट और सीनियरिटी प्रिंसिपल दोनों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी प्रमोशन की जाती है। नेक्स्ट इसमें ग्रेड 5, 6, 7, ग्रेड 5 असिस्टेंट सेक्रेटरी, ग्रेड 6 सीनियर प्रिंसिपल एंड ग्रेड 7 प्रिंसिपल। इस रैंक के जो एम्प्लॉइज़ हैं ग्रेड 5, 6 और 7 के, इनकी जो प्रमोशन है वो सीनियरिटी बेस्ड प्रिंसिपल पर की जाती है कि उसमें एज वाइज हो सकता है या दूसरा इसमें लेंथ ऑफ सर्विस, कि इसकी सर्विस कितनी है, सर्विस और एज, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी जो प्रमोशन होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाएं, हमने फ्रांस में बात की प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की। नेक्स्ट इसमें यूके में बात की, अभी हम बात कर रहे हैं यूएसए में। यूएसए में क्या है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन कैरियर सिविल सर्विस इज़ वेरी रेयर इन द यूएसए। के यूएसए में भी फ्रांस यूएसएसआर की तरह जो प्रमोशन के लिए मज़ीद जो पोजीशंस की रिजर्वेशन है उसको वो बहुत कम है, रेयर है, उसको भी डिस्करेज किया जाता है। यूएसए में जिस तरह फ्रांस में हमने पढ़ा, यूएसए में क्या है, यूएसए में बोथ सीनियरिटी एंड प्रिंसिपल बेस्ड प्रमोशन है
वहाँ पर भी सीनियरिटी और प्रिंसिपल बेस दोनों हैं कि सीनियरिटी बेस पर भी है और दूसरा मेरिट बेस पर भी है। मोस्ट ऑफ द सिविल सर्विस यूनियंस इन द USA स्ट्रेस ओनली ऑन द मेथड ऑफ प्रमोशन बाय सीनियरिटी। जो उनकी वहाँ पर जो सिविल सर्विस की जो यूनियंस हैं उनका स्ट्रेस है कि वहाँ पर सिर्फ सीनियरिटी बेस प्रमोशन होनी चाहिए। देयर इज़ अ रिटन कम्पिटिटिव प्रमोशनल एग्जामिनेशन इन द USA में क्या है कि प्रमोशन के लिए रिटन कम्पिटिटिव प्रमोशनल एग्जामिनेशन होते हैं। उस एग्जामिनेशन को जो पास करेगा, जो सिविल सर्वेंट है पास करेगा, उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स पोजीशंस जो हैं वो एलोकेट कर दी जाती हैं कि इतनी सीट्स हैं, उसमें सपोज़ 30 सीट्स हैं, कैंडिडेट्स 100 हैं, तो रिटन कंपटीशन में यही होगा कि टॉप 30 जो सिविल सर्वेंट्स होंगे वो प्रमोट हो जाएंगे। उसके बाद वाले जो रिमेनिंग 70 हैं वो उनकी प्रमोशन नहीं होगी। वो फिर नेक्स्ट जिस तरह भी मतलब उनका अगर ईयरली बेस्ड है या आफ्टर 2 ईयर्स जो उनके एग्जामिनेशन होता है तो उसी बेस पर फिर वो नेक्स्ट वो अपना जो चांस है वो अवेल करेंगे। एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू प्रमोशन कैन बी रेफर टू द लेबर बोर्ड कि किसी भी किस्म का अगर कोई अपनी उसको प्रमोशन के हवाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी को कोई इशू है, तो वो लेबर बोर्ड से रब्ता कर सकता है। लेबर बोर्ड में अपनी कंप्लेन या अपनी जो कार्रवाई है वो करवा सकता है। इन सिमिलर लाइन ऑफ थिंकिंग द सिविल सर्विस एक्ट 1978 ऑफ द USA वांटेड अ gradual introduction of merit principle in federal civil service as well as in administration as the state and the local levels। कि वही कि 1978 में जो सिविल सर्विसेज हुई, जो रिफॉर्म्स हुई, रिचर्ड निक्सन जो प्रेसिडेंट था US का, उसके दौर में ये रिफॉर्म्स हुई सिविल सर्विस एक्ट में 1978 में। तो उस हिसाब से जो मोस्टली जो उसमें रिकमेंड किया गया कि यही था कि मेरिट प्रिंसिपल होना चाहिए, इनकी प्रमोशन के लिए मेरिट प्रिंसिपल होना चाहिए। इन द USA प्रमोशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स टू द हाईएस्ट पोजीशन इन द फेडरल सर्विस इज मेड बाय द वाइट हाउस ऑफिशियल वर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम। कि जो हायर जिस तरह UK में था कि जो हायर रैंक के ऑफिसर थे उनकी प्रमोशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलिएशन और उनमें था कि मेरिट बेस्ड था। तो इसमें भी यही है कि जो US में उनको मेरिट बेस्ड था UK में, और उसकी अप्रूवल जो है प्राइम मिनिस्टर देता था। पाकिस्तान में भी इसी तरह है कि जिस तरह कोई टॉप सिविल सर्वेंट्स हैं, जिस तरह सेक्रेटरीज़ हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं, इनकी जो प्रमोशन वगैरह है ग्रेड 20 या इससे अबव की, ग्रेड 21, ग्रेड 22 में जो प्रमोशन होती है उसकी अप्रूवल जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देता है। इसी तरह UK में है कि उनकी अप्रूवल भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK देगा। US में क्या है, US में जो प्रमोशन की जो लिस्ट है, जो प्रोसीजर्स आ रहा है वो वाइट हाउस से इशू होता है, लेकिन उसकी अप्रूवल जो है फाइनली जो है उनको प्रमोट किया है कौन करता है, कौन अपॉइंट उनकी प्रमोशन करता है अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ US, वो फाइनल उनकी प्रमोशन के आर्डर जो हैं वो उधर से जारी होते हैं। द क्लासिफिकेशन एक्ट ऑफ 1949 एस्टैब्लिश जनरल शेड्यूल ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर वन कैन मेक यूज़ ऑफ प्रमोशनल बेनिफिट्स। यहाँ पर भी उसने जो एम्प्लॉइज़ हैं सिविल सर्विसेज में एम्प्लॉइज़ हैं उनको क्लासिफाई किया गया है जनरल शेड्यूल्स में, GS में। इसमें GS 1 से 15 तक है, और जो GS 16, 17 और 18 हैं इनको उसने सुपर ग्रेड्स का नाम दिया गया है। GS 1 to GS 4 ग्रेड शेड्यूल 1 से ग्रेड शेड्यूल 4 तक जो है इसमें किस किस्म के एम्प्लॉइज़ आते हैं, लो लेवल क्लरिकल एम्प्लॉइज़ इसमें शामिल होते हैं। GS 5 से GS 7 तक, GS 5 से GS 7 तक के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो लोएस्ट एग्जेक्टिव एक्लोन्स में आते हैं, वहाँ पर ये स्टैंड करते हैं। थर्ड इसमें है GS 8 से GS
12 तक जो एम्प्लॉइज़ हैं, GS 8 से GS 12 तक जो इसके एम्प्लॉइज़ हैं, वो मिडल मैनेजमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें GS 13 टू GS 15, 13 से 15 तक जो एम्प्लॉइज़ हैं वो टॉप लेवल कैरियर ऑफिशियल में आ जाते हैं। नेक्स्ट GS 16, 17 और 18 के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सुपर ग्रेड ऑफिशियल्स इसमें शामिल होते हैं। ये अमेरिका का जो सिस्टम है प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस का वो है। नेक्स्ट पाकिस्तान में हम ही देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या सिस्टम है। पाकिस्तान में अगर किसी सिविल सर्वेंट को, एम्प्लॉई को कोई इशू है उसकी प्रमोशन के हवाला से, तो वो सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो इसकी अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट की हाई अथॉरिटी है, उसको वो अपना डिस्प्यूट जो है, जो भी इशू है वो उसके पास जाएगा। अगर वहाँ से उसका डिस्प्यूट रिज़ॉल्व नहीं होता, इशू उसका रिज़ॉल्व नहीं होता, देन प्रोविंशियल लेवल पर PSTs, प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल्स, ये बनी हुई हैं। यहाँ पर वो अपना जो केस है वो लेकर जा सकता है। अगर सपोज़ प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल से वो केस उसके अगेंस्ट आ जाता है, तब उसके पास एक चांस है अपील करने के लिए कि वो हाई कोर्ट में जा सकता है। यहाँ पे ये प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल्स जो फेडरल के एम्प्लॉइज़ हैं, सेंट्रल एम्प्लॉइज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए फेडरल ट्रिब्यूनल सर्विस है कि वो वहाँ पर जाएंगे। वहाँ से अगर फेडरल ट्रिब्यूनल सर्विस या प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल से इनके जो केसेस हैं, वो इनके इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व नहीं होते, देन ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद फाइनल जो पाकिस्तान में अपेक्स बॉडी है जुडिशरी की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी अपील कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन, के प्रमोशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसमें देखें फुलफिलमेंट ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फॉर प्रमोशन। ये प्रमोशन के लिए हर डिपार्टमेंट का, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है कि उसकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी होनी चाहिए। एक रैंक से दूसरे रैंक में प्रमोट होने के लिए मिनिमम लेंथ सर्विस जो है उसको देखा जाता है। नेक्स्ट सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी ट्रेनिंग, कि जो इनकी मैंडेटरी ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करना लाजमी है। नेक्स्ट पोजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर कंडीशंस एज प्रेस्क्राइब्ड इन द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट रूल्स। क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसको बेस बनाकर पहले देखा जाए कि जो प्रमोशन के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, क्या आप उस लेवल पे हैं, आपने वो एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया हुआ है, आपकी वो क्वालिफ़िकेशन है। नेक्स्ट इसमें फुलफिलमेंट ऑफ मैंडेटरी कंडीशन ऑफ द रोटेशन पॉलिसी, कि जो उनकी रोटेशन पॉलिसी है उसको आप मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें फुलफिलमेंट ऑफ पॉलिसी फॉर फील्ड पोस्टिंग, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर फील्ड पोस्टिंग, मतलब उधर उन डिपार्टमेंट्स में सपोज़ आप पुलिस में देखें, पुलिस में अगर ये इशू है कि अगर आपने फील्ड पोस्टिंग नहीं की या आप ऑफिस में ही रहे हैं, लेकिन जब आपका प्रमोशन का जो आपने टेन्योर है वो भी मीट कर लिया है, वो आपका टेन्योर मुकम्मल हो गया, आपकी क्वालिफ़िकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपकी फ़ील्ड पोस्टिंग नहीं है कि आपने फील्ड में जॉब ही नहीं की, तो इस कंडीशन में भी आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। आपको फील्ड पोस्टिंग वाला जो एक में जहाँ पर इशू है आपको वो रिजॉल्व करना होगा। नेक्स्ट फाइनली फुलफिलमेंट ऑफ अदर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये वक्त के साथ साथ जो अदर टाइम ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी आपको मीट करना है, देन आप प्रमोट हो सकते हैं। लास्ट है USSR, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस इन USSR। For promotion of civil service employees in the USSR, unlike other countries, was governed by department as well as the appropriate party machinery। कि USS में जो प्रमोशन है एम्प्लॉइज़ की वो दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है, कि वो जो आपका डिपार्टमेंट है
वो डिपार्टमेंट ही आपकी प्रमोशन करेगा। जिस डिपार्टमेंट में आप सर्व कर रहे हैं वो उसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपको प्रमोट करें। There were general enactments in various directives of the state committees of the Council of Ministers of the USSR on labor and wages, which generally coordinates the problems of promotions। ये USSR में लेबर एंड वेजेस के जो कौंसल मिनिस्टर्स थे, इनकी इंस्ट्रक्शंस पर स्टेट कमेटी प्रमोशन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता था कि स्टेट कमेटी के ये जो कौंसल मिनिस्टर से लेबर और वेजेस के, इनकी इंस्ट्रक्शंस पर स्टेट कमेटी बनती थी और स्टेट कमेटी ही की जिम्मेदारी थी कि जो इनके प्रमोशन प्रॉब्लम्स जो हैं, किसी का कोई प्रमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको वो रिजॉल्व करें। हायर ऑफिशियल्स वर प्रमोटेड थ्रू फर्म scrutinization of the individual's commitment to communist political ideologies. The highest administrative officers, known as holders of office, were further constantly watched and checked in varying frequency by the Ministry of Finance, procurators, the party, and the various commissions or committees of control। कि USSR में जो हायर ऑफिशियल्स थे, जिनको होल्डर्स ऑफ ऑफिस बोला जाता था, वो इनको कम्युनिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी स्टार्ट में, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट थे, इन हायर ऑफिशियल्स को इनकी मर्ज़ी से कमिटमेंट के बाद प्रमोट किया जाता था। कि जो ऑफिशियल्स है जिनको प्रमोट होना था, उनके लिए लाजमी था कि वो पहले जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो पावर में थी, उनके जो कमेटी उनकी एक ख़ास बनाई जाती थी, उस कमेटी से कमिटमेंट के बाद जो हायर ऑफिसर हैं उनको प्रमोट किया जाता था। यहाँ पर वही बात है, जिस तरह यूएस में या पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में देख लें, जो हायर रैंक ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह सेक्रेटरीज़, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ लेवल के, तो उनको विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन या इन्फ्लुएंस उनको अपॉइंट नहीं किया जाता। तो ये था यूएस में। तो यूएस में ये था कि उनकी अपॉइंटमेंट के बाद भी डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस था, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रोक्यूरेटर्स थे, पार्टी थी, यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने उनको सेलेक्ट किया है या उनको प्रमोट किया है, और दूसरा जो मुख्तलिफ कमीशंस थे या कमेटीज़ थी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो सब इनको ओवरसी कर रही होती हैं, इनके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। यूएसएसआर में ये प्रोसीजर था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो अगर किसी को कोई किसमें कोई इशू है तो वो मुझे व्हाट्सएप या मेरे नंबर पर किसी भी वक्त मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।